मर गया दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई। मर गया दयाल से ती मेरी माई, दयाल से ती मेरी माई। कौन Thank you, ji. Thank you. Sat Sri Akal. Assalamu alaikum. Namaste. Got it. Okay. And sorry about that. I don't know what happened. All of a sudden, when I was joining, मैं join करने लगी हूँ तो कहते हैं आपका credentials सारे बदलो, सारे password change करो, ये करो, तो I had to do everything. उसी वक्त passport change किया, password change किया, then I got a information on my phone that this is the code number, इसको change करो. So it took a little time. I'm sorry I'm a little bit late, but देखो वीर जी ने भी वेट कराया एंड हमारे जो आए हैं हमारे हेल्प करने वाले दलविंदर सिंह जी, उनको एवरीबडी यू हैव टू वेट एंड रंजना जी भी वेट कर रही थी. सो प्लीज़ मैं उनको लिख रही हूँ, प्लीज़ ज्वाइन नाउ. एंड वी हैव रमा जी एंड कमलेश जी विद अस. Sorry about that, कमलेश जी एंड रमा जी. चलो एनीवे वी गोना स्टार्ट द प्रोग्राम सून. मैं ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸੋ ਨੋਬਲ ਐਂਡ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਸੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 1996 ਬਟ he still never said no to me and I just found out that every Friday on the same time. But you know, this is the third time that he's coming, so he will tell his followers or friends to join us, so they should be joining us too. And VGD, you know, he's got so many good qualifications. You know, he was a civil engineer with 30 years research on SDGs. In 1996, he started an NGO called the Living Treasure, a registered non-profitable headquartered in New Delhi. Twin objectives. 1. Personality development through self-evaluation, elevation. 2. Helping the needy, less privileged brethren of our society by providing them with the basic services to all. Conducts seminars, lectures, discourses, weekly Zoom sessions, live webinars, and one-to-one dialogue at various schools, universities, interfaith gatherings, and congregations. Now, he has written several books of common interest in Punjabi, Hindi, and English, and his lectures are available on pen drives, audio, CDs, videos, CDs, MPRs, and DVDs, and also on the website www.livingtreasure.org. Discourses available on YouTube, Facebook, and have been aired on various channels: Asta, Tara, Zee Punjabi, Tardi Kala, Time TV, etc. Living Treasure organization also took up initiatives to provide food, oxygen, cylinders in COVID motto, creating a world of selfless service by dispelling darkness through gems of Gurbani. So welcome ji ਸਾਡੇ program te. Thank you so much. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ join ਕੀਤਾ ਹੈ again. Today's subject is very interesting. So let me hear about the subject from you. ਤੁਸੀਂ thank you so much ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ join ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ and ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਭ ਨੂੰ. Veena ji, thanks a lot. Namaskar, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good morning or good evening, subject to which place people are listening this program. आपने मेरे को अपने प्रोग्राम पे ऑनर किया. I feel privileged के आप शेयरिंग के लिए मुझे बुलाते हैं. थैंक्स ए लॉट. आज का प्रोग्राम लास्ट टाइम की तरह ही मेरी सिस्टर ने बोला कि माँ, माता, मदर के बारे में कुछ होना चाहिए कि वो कैसे क्रिएट करती है. तो आज का हमारे प्रोग्राम का नाम है रीइंकारनेट योरसेल्फ. वाह. अपने आप को नया कैसे बनाना है. दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. थैंक यू. इसके लिए जो मुझको समझ में आया वो वाला शब्द पहले मैं
सिंगिंग में करता हूँ। ठीक है वीना जी? प्लीज। कहना है किछ कहन न जाए, कहना है किछ कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाई, तो कुदरत कीमत नहीं पाई। राव कहना है किछ कहन न जाए, माता मत पिता संतोख, सत पाई कर ए श्रम सुरत द्वे ससुर भे, करणी कामण कर मन ले, साहस संजोग ब्याह विजोग, सत संतत कहो नानक जो, कहना है किछ कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाई। वीना भैन जी, आज का शब्द जो हमने लिया है इसकी बेसलाइन है कि मेरा कुछ कहने को दिल करता है कि इस एट प्रेजेंट जो मेरे अंदर गॉड के लॉज, जिसको सच विकार बोलते हैं, एक ओ अंकार मेरे सारी बॉडी में, मेरे थॉट प्रोसेस के ऊपर जो सच के नियम की कार, नियमावली, हुक्म, सिस्टम चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मेरा कुछ कहने को दिल करता है, पर तो कुदरत कीमत नहीं पाए, फिर भी मैं बोल नहीं पाता। इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। जो कुछ समझ में आता है उस सारे को पुट अप करना और इन लैंग्वेजेस में उसको, वर्ड्स में, टर्म्स में उसको पुट अप करना इज बियॉन्ड दैट। सो ये इसका जो अमेजिंग, जिसको विस्माद बोलते हैं कि भाई अचंभा होता है, ये इसकी बेसलाइन। अच्छा, अब हम अपने इस शब्द को जैसे हमने गाया, इसमें 3 स्टैंजाज आए, माता मत पिता संतोख सत पाई करे विसेक। फिर इसमें फैमिली मेंबर्स के बारे में अगला आया, श्रम सुरत द्वे ससुर पे, और करणी कामण कर मन ले, के इन लॉज को और फिर वाइफ को, फिर बच्चों को और बहन भाई को, इनको कैसे क्रिएट करते हैं, ये इस शब्द की जिस्ट है। ठीक है जी? जी। अब हम इसकी प्रीफेस में जाएंगे। प्रीफेस में जाने के लिए हमको ये सोचना होगा, पहले अपने आप विचार के देखना है बड़ा सिंसियरली, कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे पास चॉइस नहीं थी, मुझे मालूम नहीं था कौन से मम्मी पापा के घर में पैदा होना है। राइट? यस। सेकंड, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे मम्मी पापा कौन से रीजन वाले होने चाहिए, कौन सी कंट्री में होने चाहिए, उनका क्या स्टेटस होना चाहिए। बिफोर माई बर्थ आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस। और बर्थ लेने के बाद वो जो सिबलिंग्स, जो हमारे बहन भाई पैदा होते हैं, उनके बारे में भी मेरे पास चॉइस नहीं थी। तो ये सारी जो मेरा एनवायरमेंट क्रिएट हुआ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड माई सिबलिंग्स, उसमें मैं बड़ा हुआ, और बड़ा होते हुए
जो लिमिटेशंस थी उनके अकॉर्डिंग मैंने कहीं पर स्टडी की और स्टडी करके मैं बड़ा हुआ। पर अगेन जो हमारे सामाजिक सिस्टम है उस सिस्टम में मैंने अपनी सोसाइटी में उठना बैठना जीना शुरू किया। तो सोसाइटी से मुझे पता लगा शादी करानी चाहिए, तो मैंने अपना एक पार्टनर भी ढूंढ लिया, बीट अरेंज मैरिज, बीट अच्छा लव मैरिज, ओह राइट। अब उसके बाद जो हमारे बच्चे हो गए तो ये हमारी सारी फैमिली बन गई। और जो मैंने अपना पार्टनर ढूंढा, बीट फीमेल और मेल, जो भी हमारा जेंडर होता है, रिगार्डलेस दैट हमने अपना पार्टनर ढूंढते हैं। और वो पार्टनर के जो मम्मी पापा होते हैं उनको इन लॉज बोलते हैं, सास ससुर बोलते हैं, राइट ठीक है। जिनसे मैंने जन्म लिया था उनको मम्मी पापा माता पिता बोलते हैं, जिनसे मेरे पार्टनर ने जन्म लिया है उनको सास ससुर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे सिबलिंग्स मेरे मम्मी पापा के कारण जो मेरे घर में मेरे जब मिले वो मेरे बहन भाई होते हैं। और जो मेरा मैरिज के बाद हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। ये सारों के साथ मिलके हमारी लाइफ चलती है, समाज चलता है, ठीक है। अब मेरे पास तो इन सारों में से किसी के बारे में चॉइस थी नहीं, कहाँ पैदा हुआ, कौन से पेरेंट्स, कौन सा रिलीजन, कौन सी सोसाइटी, कौन सी कंट्री, ये सारों की कोई लिमिट थी, ठीक है। अब जब हमने उसमें जीना शुरू किया तो हमको एक नोशन में एक बात प्रचलित थी, दिस वाज वाइडली नोन, कि जैसे मम्मी पापा के घर हमारा जन्म हुआ, जो हमें बहन भाई मिले और जो मेरा जीवन बना, दैट इज सब्जेक्ट टू माई पास्ट जन्मा के कारण, मेरी किस्मत, फेट के कारण। हमने ये सुना और इसको ऐसे माना और फिर ये मान लिया कि मेरे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मेरी फेट, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य बना। अकॉर्डिंग टू दैट ये मेरी हाथ की लकीरें बन गई, मेरी माथे के भाग मेरी किस्मत बन गई। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट मेरे को वो वाले मम्मी पापा मिले जहां पर मेरे पास चॉइस नहीं थी। एम आई राइट? सिंपली पुट अप हो गया ये। यार मतलब इसका मतलब यह है कि जो आपके पिछली लाइफ का काफी इफेक्ट है टू दिस जन्म में। हाँ, ये हमने सुना ना, सुना ना हमने, हाँ सुना। तो इसका मतलब हो गया दैट मीन्स वी आर पपेट्स, ठीक है। अब जब हमने अपने आप को पपेट महसूस कर लिया तो हमारे सामने एक सवाल आया कि एक इंसान गरीब है, एक इंसान अमीर है, एक इंसान के पेरेंट्स गरीब तो हैं लेकिन वो जब पैदा हुआ उसकी तो दोनों आंखें थी, लेकिन एक इंसान के पेरेंट्स अमीर भी हैं पर जब वो पैदा हुआ तो वो अंधा पैदा हुआ, हैंडीकैप पैदा हुआ। तो ये सारी बातों का नाम हमने फेट, किस्मत, पिछले जन्म के भाग और माथे लिखे कर्मों के अनुसार इसको मान लिया, ठीक है। अब हमको ये सोचना होगा कि अगर ये अकॉर्डिंग टू दैट हुआ है तो देन हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं है, फिर तो हम पपेट हैं। आनंद मूवी में राजेश खन्ना ने एक सेंटेंस बोला, हम सब भगवान की कठपुतलियां हैं, है ना। हम सब भगवान की कठपुतलियां, जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं। ट्रू। अब अगर मैं अपने पार्टनर या अपने बच्चे या अपने नौकर या अपने फैमिली मेंबर्स या अपने सोसाइटी में किसी के साथ मिसबिहेव करूं और मिसबिहेव करने के बाद उसको हर्ट करूं और फिर बोलूं मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं तो पपेट हूं, जैसे गॉड मेरे को करा रहा है मैं कर रहा हूं। That's not. धर्म की दुनिया में
अगर हम देखते हैं, वाइडली नोन है एक बहुत पॉपुलर न्यूज के इंडिया में एक बच्ची जिसका नाम दामिनी था, उसको 3-4 लोगों ने मिलके उसकी इज्जत को लूटा। अब वो, अगर हम इसको इस बॉक्स में डाल दें कि दामिनी का इज्जत इसलिए लुट गई कि वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों के भाग थे, then somewhere we are lost, we are confused. At the same time, अगर हम ये दामिनी के ऊपर ऐसे बोल देंगे तो ये हमारी गलती है। लेकिन अगर ये हम ये गलती से ऐसे मान जाए कि दामिनी को पिछले जन्मों के कर्मों करके हुआ है, क्योंकि हम सारे भगवान की कठपुतली हैं, वो करा रहे हैं, तो वो जिन्होंने उसकी इज्जत को लूटा वो भी कहेंगे हम भगवान की कठपुतली, हमसे हो गया। हमने एवोल्यूशन में सीखना है कि एवरीबॉडी हैज टू इवॉल्व। डे बाय डे हमने सिविलाइज्ड होना है। डे बाय डे मैंने अपनी एलिवेशन करनी है। डे बाय डे मैंने अपने मन नीवा मीन्स मेरे को हम्बल होना है। तो मेरे को मत उच्ची सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग समझ में आएगी। तो जिस इंसान को हाई थिंकिंग के बारे में इवॉल्व होने के लिए अपने कैरेक्टर को ऊंचा करने वाली बात समझ में आएगी, वो दामिनी जैसी बच्ची के ऊपर वो वाला रॉन्ग एक्शन नहीं करेगा। Correct. इसका मतलब हमारी सोसाइटी में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, जो फुल ऑफ ह्यूमैनिटी के नॉर्म्स होते हैं, आइडियल्स होते हैं, मोरालिटी होती है, उससे हमारी सोसाइटी सुखी बनती है, स्वर्ग बनता है। यहाँ पर ये अर्थ, ये सोसाइटी, ये प्लेनेट को हमने हेवन स्वर्ग बना के यहाँ पर एक दूसरे के लिए सुखी होना है और एक दूसरे को सुखी करना है, इन स्पाइट ऑफ के मैं दूसरों के लिए जहमत बन जाऊं। अगर मैं कार सीखने गया, तो कार तो जान ली मैंने कैसे चलाते हैं, लेकिन मैं लाइसेंस लेने गया तो लाइसेंस वालों ने मुझे कुछ नियम बताए कि ये नियम पढ़ के आओ, फिर तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा, तुमको दे। क्यों? वो चाहते हैं कि जब ये कार सड़क पर चलाएगा, इसकी कार में जो लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नुकसान ना हो, लेकिन इनकी कार के कारण ये चलाने वाला गलत ना चलाए, जिसके कारण दूसरों की कारों का नुकसान ना हो। अगर गलत चलाएगा तो दूसरों का भी नुकसान होगा। एक एग्जाम्पल है रोड का। इसका मतलब हमारी ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी में डाइवर्सिटी में लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, कोई बौद्धि है, कोई एथिस्ट है, कोई कम्युनिस्ट है, लेकिन सारों के बीच में एक कॉमन है कि हमको इंसानियत वाला, एथिकल वाला, आइडियल्स वाला, मोरालिटी वाला जीवन जीना है, ताकि हम सारों के साथ जी सके, इस प्लेनेट को सुखी और खुश ठीक बना सके। जी बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा, गॉड की जो क्रिएशन है उसके बारे में इसमें बोला, दिल तो करता है बोलने का, पर वो तो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। तो अपने बारे में सोच सकते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था, मेरे वश में कुछ नहीं था, मेरे पास चॉइस नहीं थी, लेकिन मेरी बॉडी के साथ मेरा मन पैदा हो गया। मन, इंग्लिश की दुनिया में मन की अभी ट्रांसलेशन बनी नहीं है डिक्शनरी में, उन्होंने इसका नाम माइंड रख दिया। मन के कारण माइंड बनता है, माइंड को मत बोलते हैं, मत बुद्ध बनती है सब्जेक्ट टू मन। ये मन जैसा सेवे तैसो होए तेहे कर्म कमाए। मेरा मन
हाउस ऑफ थॉट्स है, इसके कारण माइंड बनता है, मतबुद्ध बनती है। जैसे मेरा नाम भूपिंदर सिंह है और ये भूपिंदर सिंह की कमीज है, कमीज भूपिंदर सिंह नहीं है। सो भूपिंदर मीन्स मन, और मन की मत, मन की बुद्ध, मन का माइंड इज सेकेंडरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मन। ठीक है। अच्छा, तब तो मेरे पास चॉइस नहीं थी कि कौन से मम्मी पापा के घर और कौन से बहन भाई के घर में साथ में पड़ा बला बड़ा हूँ, अपने आप को रेज करूं। लेकिन अब मेरे पास चॉइस है कि मैं अपना जो बॉडी का मेरा मन थॉट प्रोसेस का बचपन से मेरा कैरेक्टर बन गया था, मैं उसको ठीक करूं। वो ठीक होता है एक डॉक्टर के इंजेक्शन से, एक डॉक्टर के दवाई से। उसको सतगुरु बोलते हैं, वैद गुरु गोविंदा बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड धर्म। धर्म मेरे को कहता है तुम भूपिंदर सिंह अपना मन नया बना सकते हो। जो मेरे मम्मी पापा से मेरे को बॉडी मिली थी, बॉडी यही रहेगी, लेकिन तुम अंदर से नए बन सकते हो। पहले भूपिंदर सिंह तुमने ख्याल नहीं किया, ख्याल ना करने के कारण इनोसेंस थी या एरोगेंस थी या इग्नोरेंस थी, वो गड़बड़ हो गई, तो आप ड्यूअल पर्सनैलिटी बन गए हो। अब अपना गुर के शब्द बनाओ ए मन, तुम अपना नया मन बनाओ, क्रिएट योर ओन मन। रीइनकारनेट योर सेल्फ। ये टॉपिक है ना आज का। समझ गई मैं। अच्छा, जो मेरा अभी तक रीइनकारनेट नहीं किया था, तो मैं अपना एग्जांपल रखूंगा कि अगर मैं किसी के ऊपर येल करता हूं और किसी को डोमिनेट करता हूं, तो उसको बोलते हैं जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हुवत स्वान। स्वान का मतलब होता है डॉग, कुत्ता। मैंने डॉग वाला एक्शन किया मन के लेवल पे, फिर वो बॉडी से बाहर मेरा हुआ एक्शन, तो मन के लेवल पे पहले मैं डॉग बन गया। देखने में भूपिंदर सिंह लग रहा हूँ, देखने में मैं अमेरिका में रहता हूँ, देखने में मैं वाइडली नोन अमेरिकन सिटीजन हूं, पर मैं हेल, नर्क क्रिएट कर लिया और डॉग बन गया। उसको क्या बोलते हैं गुरबाणी में? उसको गुरबाणी में बोलते हैं पशु मानस चंप लेते। देखने में मैं मनुष्य हूं, पर मैंने पशु ने, मेरे अंदर के डॉग ने मनुष्य का चमड़ा परसोना लगाया हुआ है। सिंपल है वीना जी, इजी टू अंडरस्टैंड है। है कि आप इंसान हो, जैसे बैठे हुए हैं सब हैं, लेकिन माइंड जो है ना वो चेंज हो गया, लाके पशु जैसे, जैसे जैसे आपने बोला डॉग बन गया, डॉग की मेंटालिटी हो गई। राइट। तो धर्म की दुनिया हाँ, में वो आदमी आदमी की मेंटालिटी, जो शक्ल नजर आ रही है ये वो नहीं, मेंटालिटी जो है ना वो बदल गई है। राइट, दो दो दोस्त हैं, मैं उन दोनों को लड़ा देता हूँ। उसके पास जाके बोलता हूँ तू बहुत अच्छा है, मैं उसकी फेवर नहीं करता। उसके पास जाके बोलता हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं उसकी फेवर नहीं करता। इसको ड्यूअल पर्सनैलिटी कहते हैं, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। तो मैंने वो जो दो मुंह वाला सांप होता है ना, मैंने सांप वाला जीवन बना लिया। मेरा आवागमन हो गया, मैं इनकारनेट हो गया सांप। पहले मैंने कुत्ते का एग्जाम रखा, फिर सांप का रखा। और अगर मैं हिपोक्रेसी करता हूं तो धर्म की दुनिया में उसको बोलते हैं देखने में तू भूपिंदर सिंह है, लेकिन अंदर से तू बगला है। आई नो, है ना? ये तो बिल्कुल आपने बिल्कुल
ठीक बोला है, बिकॉज ऐसे लोग नजर आते हैं लेकिन इनसाइड में जो हैं वो भी उनका डीलिंग विद देम पता चलता है कि क्या क्या उनकी सोच क्या है, करते क्या है। शक्ल से या वही लग रही है, नाम वही है, सब कुछ वही है। हाँ जी। अच्छा, एक ईडियम भी आपने सुना होगा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अच्छा, यहाँ पर मेरे छुरी है, वो छुरी नजर नहीं आती किसी को, है ना। सबको तो बाहर से भूपिंदर सिंह नजर आ रहा है, पर यहाँ मेरी छुरी मीन्स मैंने अपने मन के अंदर छुरी रखी हुई है, और मैं बाहर से यहाँ से तोते की तरह राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड, वागरू वागरू करता हूँ, पर बाहर से कैंची चलाता हूँ। ठीक है। अगर मैं स्टब्बन हूं और मैं सच को समझना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं नानक से नर असल खर। दे आर लाइक डंकी, खोता। अच्छा, देखने में तो मैं भूपिंदर सिंह ही लग रहा था, देखने में तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अमेरिकन सिटीजन हूँ, अमेरिका रहता हूँ, सारी दुनिया जानती है, पर मेरे बिहेवियर में मैं दिन में कितने परसोना बदलता हूँ, कितने अपने रूप बदलता हूँ, मैं कितना बहरूपिया हूँ। आई कीप ऑन चेंजिंग माई पर्सनैलिटी। इसके कारण मेरा समाज खराब होता है ना, हम्म, इसके कारण मैं दूसरों के लिए नर्क बना देता हूँ ना। ठीक बात, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% करेक्ट। अच्छा, जो हमने प्रीफेस में डिस्कस किया था कि मेरे पास चॉइस नहीं थी कि कौन से मम्मी पापा के घर हाँ, पैदा हूं, अब मेरा मन के लिए मेरे को अंदर से मम्मी पापा क्रिएट करने हैं, मेरे को अंदर से मेरे बहन भाई क्रिएट करने हैं, मेरे को अंदर से मेरे इन लॉज सास ससुर पैदा करने हैं, क्योंकि सास ससुर से जो मेरी वाइफ मेरे को मिलेगी उसको कामण बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, नार बोलते हैं, फिजिकल लेवल पे फीमेल नहीं बोलते हैं। हम्म, आप कौन से जेंडर के हैं दुनिया में, अंदर से जब हम काइंड हार्ट होते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान जिस मर्जी जेंडर का, तो उस टाइम वो मां बन जाता है। हम्म, आप मेरे साथ एग्री करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप सिस्टर भी हैं, आप बेटी भी हैं, आप माँ भी हैं, आप वाइफ भी हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल, यस। तो माँ जब काइंड हार्ट होती है, तो आज का हम मैसेज टेक होम करेंगे, हम सब ने माँ बनना है। माँ इज क्रिएटर। यस, कोई भी दुनिया की माँ जब बायोलॉजिकल बच्चे को जन्म देती है, तो उस दिन माँ का और बच्चे का नया जन्म होता है, और इस सारी यूनिवर्स में एक नया बीइंग आता है। इसका माँ, इसका मतलब मदर भी कर्ता पुरुष होती है, मदर भी क्रिएटिव होती है, मदर भी क्रिएटर होती है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं इस तरीके से, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक बोला है थैंक कि जब देखो, जब मैं तो कहती हूँ बच्चा जो होता है तो उसे मिरेकल माँ ने क्रिएट किया है अपने यू। इट इज। 9 मंथ्स। यस। देखा उसको 9 मंथ्स पाला, आई मीन बिफोर गिविंग बर्थ। बर्थ करना कौन सी आसान बात है? ओह, औरतों से ये तो। पूछो, ask the यस। woman when they go through the labor pain and have the baby, and the man doesn't have to do the, आदमी को तो कुछ भी नहीं होता, औरतों को ही होता सब कुछ। So हाँ create जी। तो 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 है special with वो, women, you know? अच्छा, एक सेमिनार मैंने किया था, शब्द था जिन हर हृदय नाम न बसो तिन मात की जय हर बांछा। तो उसके लिटरल मीनिंग किए हुए थे कि जो इंसान भगवान का नाम ले ले, उसकी माँ को बांझ कर दो। अरे, इंसान तो पैदा हो चुका है, अब उसकी माँ को बांझ कैसे करेंगे। हाँ, सेकंड पॉइंट, दुनिया की हर माँ, चाहे वो एथिस्ट कम्युनिस्ट है, चाहे गरीब है अमीर है, दुनिया में कहाँ रहती है, भगवान को मानती है या नहीं मानती है, जिस मर्जी स्टेटस की है, हर माँ 9 महीने बच्चे को बड़े पैशन से रखती है, क्रिएटर की तरह काइंड हार्ट होके वो ध्यान रखती है। मैंने उछलना नहीं है, बेबी को नुकसान हो जाएगा, मैंने ये नहीं खाना, बेबी को नुकसान हो जाएगा, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करना, कितना ध्यान रखती। क्रिएटर है ना, काइंड हार्ट है ना। yes,
तो उस माँ को क्यों बांझ करना है? गलती बच्चा करे और पनिशमेंट माँ को हो? वाई? माँ तो अपना प्यार से, चाहे उसको खाने को ना मिले, फिर भी अपने बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिलाती है ना। बिल्कुल। तो कोई भी तो माँ नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा बुरा बने, पैड़ा बने, चंगे कैरेक्टर वाला ना बने। ऐसे कोई चाहती है माँ? नो। कोई भी नहीं चाहती। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੀੜ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਸੋ ਤੀ ਮਾਤ ਕੀ ਜਰ। मात डज नॉट मीन मदर, उसकी फिजिकल बायोलॉजिकल मदर नहीं, उसकी मत बांझ हो गई है, जहां पे चंगे गुणों वाला, चंगे ख्यालों का बेबी रूपी मन पैदा नहीं होता है। राइट। तो उसके मीनिंग हम जब ऐसे समझेंगे तो हम सबसे पहले समझेंगे कि मेरे अंदर वो माँ को रीइंकारनेट करते टाइम मेरा नया टॉपिक शुरू होगा, नया जीवन आज से शुरू होगा, अगर मैं अपने अंदर माँ पर्सनैलिटी वाला, काइंड वाला, दया वाला, अल्ट्रुइज्म वाला, एम्पैथेटिक होके दूसरों के भले के लिए एक ये अपनी फैकल्टी को ऑन कर लूं, अपने अंदर ये चिप एक्टिवेट कर लूं, तो इसको बोलते हैं माता मत। मैंने अपने अंदर नई मदर पैदा कर ली। ठीक है? अच्छा, अगर मैं अपने अंदर से माता को पैदा कर लूं, तो माता के साथ पिता चाहिए, जिन्होंने मिलके बच्चा पैदा करना है। तो मेरे पास पिता है, माता के कारण, दया रूपी माता के कारण पिता संतोष, कंटेंटमेंट आ जाएगी। सो माता मत, पिता संतोष दोनों मिलेंगे जब, तो बनेगा सात पाई का अभिषेक। उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, जो मेरे सिबलिंग्स हैं, वो होंगे मेरे सेवा भाव, दूसरों के लिए जीना, लिविंग फॉर अदर्स वाला जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे अंदर के बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? एक बार फिर कहना है मुझे, जो सिबलिंग्स के बारे में। सिबलिंग्स कैसे पैदा होंगे? मेरे मम्मी पापा जो बायोलॉजिकल वाले थे, उनसे जो मेरे, हम चार बहन भाई हैं, अजीत है, जोगी है, भोला है, हम चार बहन भाई हैं, ये मेरे सिबलिंग्स हैं। राइट। ये फिजिकल लेवल पे हैं। पर जो मेरे मम्मी पापा ने ये सिबलिंग्स पैदा किए, इसी सिस्टम में अंदर भी मेरे एक यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में, लॉज ऑफ नेचर में, मेरे अंदर अगर मैंने चंगी मत, अच्छी मत, पॉजिटिव थिंकिंग वाली, जिसको सुमत बोलते हैं, जिसको विजडम बोलते हैं, अगर वो पैदा कर ली, तो उसके साथ पिता चाहिए, दैट इज कंटेंटमेंट। दोनों से मिलने के कारण अब जो बच्चे पैदा होंगे, जो मेरे बहन भाई होंगे, सिबलिंग्स होंगे, वो होते हैं सेवा भाव। सेवा भाव। जितने इमोशंस मैं दूसरों के लिए, हाउ टू लिव फॉर अदर्स करूं, उसको सेवा बोलते हैं। अपने बहन भाई को सेवा भाव हो गया ना? हाँ जी, आपके अंदर जितने भी दूसरों के भला करने वाले ख्याल आएंगे ना, वो आपके अंदर के ब्रदर सिस्टर्स हैं। अच्छा, ओके, नाउ अंडरस्टैंड। ये सिबलिंग्स हैं आपके। इसके कारण जो आपने अंदर एक नई मदर पैदा की, और कंटेंटमेंट रूपी फादर पैदा किया। तो दया रूपी मदर, कंटेंटमेंट, सुमत रूपी मदर के साथ कंटेंट फादर, दोनों मिलके जो मेरे अंदर से ख्याल पैदा हुए, वो दूसरों को भला करने वाले, शेयरिंग करने वाले इमोशंस पैदा हुए, जो मेरे को इंस्पायर करते हैं कि आओ चलो सबकी सेवा करेंगे। आपके वो बहन भाई हो गए ना, जैसे सेवा भाव हो गया ना वो, तो यस। तो सेवा भाव, दोज इमोशंस विच आर कॉल्ड मेरे अंदर के सिबलिंग्स, मेरे अंदर के टब्बर के बहन भाई। Now next, very well explained, beautifully explained.
थैंक यू। आपको कह रही हूँ। ये जो एनालॉजी है ना, ये एनालॉजी बाहर वाली फैमिलीज के रिश्तों के अकॉर्डिंग अंदर वाली फैमिली बनाने का नाम ही आज रीइंकार्नेट योरसेल्फ। हम्म, ओके। अच्छा, अब जब हम बड़े हो गए तो मेरे को मेरा पार्टनर चाहिए, ठीक है। पार्टनर मेरा अच्छा होगा सब्जेक्ट टू अगर मेरी लॉज भी अच्छे हैं, बिल्कुल। है ना। अगर मेरे लॉज अच्छे हैं और मेरा पार्टनर मेरे को अच्छा चाहिए तो मेरे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। नो गारंटी। फिजिकल लेवल पे नहीं। हाँ अब हम अंदर की बात करें, अगर फिजिकल लेवल की बात हाँ, करेंगे बात है, अंदर की बात है। तो आपने बहुत अच्छा मेरे को वहां पे उसको रोका है कि अगर फिजिकल लेवल की बात करेंगे तो दुनिया में बहुत सारे मम्मी पापा अच्छे होते हैं, कैरेक्टर के भी अच्छे होते हैं, टाइम भी इधर उधर वेस्ट नहीं करते हैं, आपस में भी लड़ते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है और बच्चों को प्यार भी बड़ा करते हैं। लेकिन उनका बच्चा बड़ा होके बाहर कौन सी कंपनी में जाता है, वो अपना थॉट प्रोसेस वैसा बनाता है। वो गुड भी बन सकता है, बैड भी बन सकता है, पर पेरेंट्स का तो अपना काम घर में उन्होंने किया ना, उन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। ये ठीक बात है। वो फिजिकल लेवल पे है ना। राइट। पर इसके लिए कबीर साहब कहते हैं अगेन, जैसे मैंने बोला ना, मैं एकदम शिफ्ट हो गया। मैं देखने में भूपिंदर था, करतूत पशु की मानस जात था, पर मैं भूपिंदर कुत्ता बन गया, भूपिंदर बगला बन गया, भूपिंदर सांप बन गया, भूपिंदर गधा बन गया अभी इसी लाइफ में, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में रोज कितने सारे पर्सोना बदलता हूं। तो अगर मैं कबीर साहब से पूछूं तो कबीर साहब का एक शब्द आता है, कबीर मन पंखी पे हो। मेरा मन बर्ड बन गया, उड़ उड़ दे दिस जाए, वो कई जगह चला जाता है, मेरे सारे ऑर्गन से बाहर निकल के चला जाता है। जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। मेरा मन बर्ड जहां पर जाता है, जैसा बीज जैसी कंपनी में जाता है, वैसे फल खा के वैसे करेक्टर वाला बन जाता है। ओके। तो अगर हमारा किसी का भी मम्मी पापा अच्छे हों, घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो, पर बच्चे का मन कौन सी कंपनी में गया बर्ड बन के, तो बच्चा तो वैसे वाला बनेगा ना। बिल्कुल। वहां पे हमारी लिमिटेशंस की बात आ जाएगी कि हमारी रीच नहीं थी कि मेरे मम्मी पापा केड़े हों, मेरी रीच नहीं सी मेरे भैन भरा केड़े हों, मेरी रीच नहीं सी कि मैं कौन सी कंट्री में पैदा हूं, मेरी रीच नहीं थी किसी भी बारे मेरी बॉडी कैसी हो, कुछ भी मेरी चॉइस नहीं थी। अब हम बॉडी ए मन सुंदर अपना बना रहे हैं, नया बना रहे हैं। अब हम गुरु के फिटनेस सेंटर में आए हैं, मैं अपनी नई बॉडी बना रहा हूं। अब मैं अपने गुरु के ब्यूटी पार्लर में आया हूं, वो मेरे को सुंदर बना रहा है अंदर से, है ना। यस। तो उसने मेरे को माँ दी, काइंड हार्ट, और कंटेंटमेंट दिया, संतोख। दोनों से मेरे बहन भाई दूसरों का भला करने वाले इमोशंस दिए, सेवा करने का, सर्विस टू अदर्स, हाउ टू लिव फॉर अदर्स अनकंडीशनली। वो मेरे सिबलिंग्स मेरे को मिल गए। अब मेरे को चाहिए मेरा पार्टनर। पार्टनर कम्स फ्रॉम इन लॉज। राइट। अब हम फिजिकल लेवल के बदले अंदर के लेवल की बात कर रहे हैं। अगर मेरे अंदर श्रम सुरत है ना, सुरत मीन्स के आई ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स, wherever I go I pick up the positives। उसको सुरत बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज माई मदर इन लॉ। और अगर मैं वो जो पॉइंट उठाता हूं, जहां से लेके आता हूं अपनी सास के थ्रू, वो वाले पॉइंट के साथ अगर मैं उसके ऊपर एफर्ट करता हूं टू बी दैट, है ना, टू बी एट आइडियल्स, आइडियल, यस। ठीक है। गुड ह्यूमन बीइंग, इंसानियत वाले
प्रैक्टिस करता हूँ ना, जो मैसेज मैंने लिया, तो उसको मेरा फादर इन लॉ बोलते हैं, ससुर उसको बोलते हैं उद्यम, उसको बोलते हैं एफर्ट। बहुत ही अच्छा समझाया। थोड़ा मैं तो कहती हूँ देखो, एवरीबडी इज बेनिफिटिंग बिकॉज हमको इतनी अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी जैसे आप समझा रहे हो। अबाउट आवर सेल्फ वी डोंट नो, पर जैसे आपने समझते ना कान खोले, आंखें खोली हैं, तो वी कैन सी आवरसेल्फ इन लॉट ऑफ दीज जो सिनेरियोज जो आप कह रहे हो, यू नो एवरीबडी कैन रिलेट टू दैट, यू नो। राइट। तो अभी इसमें से एक पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया कि मैं ह्यूमन बीइंग हूं। अभी जेंडर की बात नहीं हो रही है। जब भी हम धर्म को सीखेंगे तो जेंडर के पीछे खड़े होके नहीं देखेंगे, अच्छा, है ना। ह्यूमन बीइंग्स को कबीर राम की अंश, हम सारे के अंदर राम है। देयर इज गॉड विद इन एवरीवन। गॉड का जेंडर कोई होता नहीं है। गॉड को ही नहीं बोलते हैं, गॉड को शी नहीं बोलते हैं। ट्रांसलेशन में अगर कोई बोल दे गॉड कैपिटल एच के साथ ही, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गॉड की कोई जेंडर नहीं है। ऐसे ही हम सारों का अगर काउंट ना करें कि मैं कौन से जेंडर का हूं, तो अब धर्म मेरे को सीधा सीधा समझ में आएगा, इट इज फॉर मी, रिगार्डलेस कौन कौन से जेंडर का है। ठीक है। तो हमने अपनी वाइफ गुड थॉट प्रोसेस वाली नार पत्नी प्राप्त करनी है, उसको कामण बोलते हैं। उसके लिए मेरे को इन लॉज चाहिए, सास और ससुर। उसको इस शब्द में बोला है, श्राम सुरत दोए ससुर पे हैं। मेरे इन लॉज कौन है? मैं सच की तरफ ख्याल करता हूँ सुरत को, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं वैसा बन जाऊं। तो उसमें से मेरी वाइफ पैदा हो जाती है, कामण। ठीक है। श्रम सुत दो ससुर पे करनी कामण कर मन ले। तो मेरे मन की कामण, अगर इसको आपने ऐसे समझना हो ना, मैंने ये सीन ऐसे बनाया था, ये मेरा घर है और इस घर का ये मेरा जो मन है, ये इसका मालिक है। इसकी सुरत जिधर जाएगी ना, वैसी इसकी मत बुद्ध बन जाएगी। ये मत और बुद्ध है। इसके कारण इसका जो थॉट प्रोसेस बनेगा ना, जो इसकी पत्नी है, जो इसके घर की नार है, एनीबॉडी एल्स की ये जो नार है ना, ये सब्जेक्ट टू दिस बनेगी। इसको कामण बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, स्त्री बोलते हैं, वाइफ बोलते हैं। चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, चाहे जिस मर्जी जेंडर का, हर किसी का थॉट प्रोसेस जो बन जाता है उसको कामण बोलते हैं इस शब्द में। अगर श्रम करें और सुरत को पॉजिटिव रखें, चंगे गुणों के लिए प्रैक्टिस करें, तो हमारे मन को चंगी वाइफ मिल जाती है। और उन दोनों के साथ मिलके हम क्या काम करते हैं? साहा संजोग, ब्याह हो गया, शादी हो गई। विवाह विजोग क्या हुआ? हमने अवगुण छोड़ दिए, डेफिशिएंसीज वाले ख्याल छोड़ दिए, जिससे मैं बार बार कुत्ता बिल्ली सांप बनता था, वो जीने जी मैंने छोड़ दिए। अब मैं डोमिनेट नहीं करता, अब मैं किसी ऊपर यल नहीं करता। अगर मैं ये प्रैक्टिस करनी शुरू कर दूं, तो मैं उनको छोड़ रहा हूं ना, इसको विजोग बोलते हैं। और मैं सच की संगत कर रहा हूं, इसको संजोग बोलते हैं। आपने सुना है कि संजोग का मतलब लोग समझते हैं वो आसमान के ऊपर भगवान ने हमारी शादियां लिख दी हैं, तो ऊपर से ही लिख के आया हुआ ये संजोग होते हैं, जैसे वहां पर शादी हो जाती है। ये गलत स्टेटमेंट है। ऐसा कोई ऊपर भगवान बैठ के लिखता नहीं रहता, इसकी शादी उससे कर दो, उसकी शादी उससे कर दो, फिर सारे आपस में लड़ते रहेंगे, तो फिर मैं ऊपर देखता रहूंगा। ऐसा नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं कि ऊपर के सबकी पहले लिखा होता है कि भाई इससे होएगी, इससे होएगी। बात बाबा जी ने या भगवान ने लिखा हुआ है कि इसकी शादी इससे होएगी, इसकी ये, बट जैसे आप कह रहे हो वैसे नहीं है। हाँ, हम सब पपेट नहीं है। मेरे को एक गुरबाणी में से शब्द मिला था, हे कलमुल क्रोधं कदंच करुणा न उपजते। वो एक क्रोध मेरे भूपिंदर सिंह, वो मेरे थॉट प्रोसेस में क्रोध, तू मेरे को इतना तंग करता है, तेरे को जरा दया नहीं आती है। विख्यात जीवन वश्यं क्रोध, तू मेरे को अपने वश में कर लेता है। नाचंत कैसे? उसमें बोलते हैं विख्यंत जीवन वश्यं क्रोध नृत्यं क्रोध, मेरे को नचाता है। जथा मरकटे, बंदर की तरह नचाता है। अगर मैं बंदर की तरह नाच रहा हूं, भगवान नचा रहा है कि मैं नाच रहा हूं? भगवान नहीं नचा रहा।
मेरे अंदर क्रोध आया। ये सेंटेंस मैं बार बार बोलता हूँ कि खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही ये ख्याल जो तू घायल हुए जा रहा है। हाय हाय। तो मैं अपने ख्यालों से मैं नाचता हूँ ना, अपने गलत ख्यालों के कारण मैं टपदा, उछलदा, एजिटेट होंदा, अपसेट होंदा, फ्यूरियस होंदा, है ना। अपने कारण या हाँ, अभी ये बाहर की धरती में भूचाल नहीं आया है, पर मैंने अपने वाइफ को बोल दिया 9 बजे मेरे को जाना है, तुम नाश्ता लगा देना, मेरी जरूरी मीटिंग है, बहुत बड़ा बिजनेस मिलने वाला है, मैं टाइम पे ऑफिस जाता हूँ, मैं पंक्चुअल नोन हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिलता है हर साल, इनाम मिलता है, मैं पंक्चुअल हूँ। तो ये तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी बना ली। पर उसने जब नाश्ता बनाना था, किसी कारण नाश्ता लेट हो गया, मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो मैंने क्या किया, घर में भूचाल ले आया, अर्थक्वेक ले आया, मैंने सारा ब्रेकफास्ट का टेबल उल्टा कर दिया। ये भगवान करा रहा है मेरे से, नहीं नहीं, ये मैं कर रहा हूँ ना। आपके अंदर में जो भूचाल आ गया है, मेरे को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया, एंगर आ गया, जो भी है उसका नतीजा है ना सब कुछ। हाँ, क्रोध आ गया, मैंने उसको गुस्सा किया, क्रोध आ गया, बना हुआ नाश्ता मैंने उल्टा कर दिया। मेरे को क्रोध आ गया, मैंने उस नाश्ते को उल्टा करने के बाद उसके इन लॉज को अब्यूज भी किया। ये भगवान कराता है मेरे से? नो, नहीं जी नहीं, ऐसी कोई डिक्टेशन भगवान नहीं देता। दिस इज माई बांदर इनसाइड, दिस इज माई मंकी इनसाइड। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर। जंपिंग मंकी तो मैं बनाऊं, भगवान ने नहीं बनाया। वी आर नॉट पपेट्स। I am puppet subject to my thought process. I am not puppet subject to हाथ की बनाई हुई लकीरें. I am not puppet subject to किस्मत, fate, karma theory. I am puppet subject to my thought process. अगर मैं ये रियलाइज कर लूं ना कि मैं ऐसे क्यों करता हूं, मेरे को नया बनना है, तो आज का टॉपिक शुरू होता है, रीइंकार्नेट योरसेल्फ। ठीक है, नया बना लो अपने, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो करनी कामण कर्मन लय के बाद साहा संजोग विहा वियोग, ये साहा होता है, ये संजोग होता है कि मैं डेली चूज करता हूं कि मैंने सुर्त करके मैंने गुड पॉइंट्स की कंपनी करनी है और बैड हैबिट्स को छोड़ना है। सच संतत को नानक योग, ऐसे मेरा ये व्याह हो जाता है। और उसमें से मेरे जो चंगे चंगे गुणों की प्रैक्टिस होती है, वो मेरे किड्स होते हैं, वो मेरे ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वो मेरा टब्बर होता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मैसेज टू होम क्या बना? मैसेज टू होम बना, हमने स्पिरिचुअल बनना है, हमने इटर्नल बनना है, हमने माँ बनना है, हमने क्रिएटिव बनना है। तो उससे हमारे अंदर की सारी फैमिली नई बन जाएगी, मेरी पर्सनैलिटी नई बन जाएगी, मैं नया बन जाऊंगा। उन्होंने काइंड कहते ने, अल्ट्रुइज्म कहते ने, एम्पैथेटिक कहते ने, उन्होंने दूसरे वास्ते जीना कहते ने, जिस तरह माँ दूसरों के लिए जीती है। रीइनकार्नेट योरसेल्फ, यही हो है ना, मतलब दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस, कि यस आपको चेंज, ये सब चीजें यस जो अपने हुए हो इसको सब करके अपने आप को चेंज करो, रीइनकार्नेट योरसेल्फ। यस, अभी आवन है सृष्टि में बिन बूझे पशु टोर। अजी भूपिंदर सिंह जी, तुम इस सृष्टि पे आए तो हो, इस प्लेनेट पे, पर तुमने ये सच नहीं समझा है, तो यू आर एक्टिंग लाइक पशु टोर, यू आर राइट, एक्टिंग लाइक एनिमल्स। आई एम नॉट सपोज टू एक्ट लाइक एनिमल्स। तो दिस इज क्रिएट योर ओन सेल्फ। एक क्वेश्चन किसने पूछा है, मेरी एक शैली जी ने, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज? अभी वीर जी आपको आंसर करेंगे। अभी शैली जी ने क्वेश्चन किया है, वीर जी, हाउ कम all siblings are of different personalities, though parents have same personalities which she carries them, मतलब हाउ कम ऑल सिबलिंग्स आर ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटीज दो, तो माँ बाप तो सेम ही होते हैं, हाँ जी, बच्चे कैसे आप डिफरेंट हो गए हाँ, पर्सनालिटी के हुए? आप बायोलॉजिकल फिजिकल लेवल पे एक मम्मी पापा के घर जो बहन भाई पैदा हुए हैं, मीन्स जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो डिफरेंट पर्सनैलिटी के उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बात करें कि भी देखो, बच्चे जो भाई बहन होते हैं, ये रियलिटी की बात है, जैसे किसके घर में 5 बहन, जैसे आपके 4 हैं, किसके 2 हैं, किसके 3 हैं, तो सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, ऑल्दो माँ बाप तो सेम है,
माँ बाप तो क्रिएटर सेम है, लेकिन सबकी सोच है, एवरीथिंग डिफरेंट क्यों है? ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन सब ने अपने अंदर के स्पिरिचुअल मम्मी पापा बना लेंगे तो सेम हो जाएंगे। सेम हो जाएंगे। तो जो बाहर वाले मम्मी पापा है ना, वो चाहे सेम है, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस एवरी डे एवरी मोमेंट, साइकोलॉजी साइकेट्री साइंस बोलती है ना हमको कि 60 to 65,000 ख्याल हमको पर डे आते हैं। वाओ। हमारा मूड फ्लक्चुएट करता है। तो जो हमारा Exactly. मूड, हमारा थॉट प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू दैट वो बेबी जब कंसीव होता है उस दिन मम्मी पापा का कौन सा मूड है और वो उसको कैसे डील करते हैं। पहले बच्चे को बहुत ज्यादा लाला पापा कर करके उसको पालते रहते हैं, दूसरे बच्चे को थोड़ा गुस्सा करते हैं, नहीं नहीं वो सो रहा है, उसको हाथ नहीं लगाना, दूध पिएगा वो। तो ऐसे तरीके से उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है ना। मैं समझ गई हूँ आपकी बात, क्योंकि अभी अब आपने एक्सप्लेन किया था पहले कि देखो, एवरीबॉडी, माँ बाप तो सेम है लेकिन है तो सेपरेट पर्सन। तो उसका थॉट प्रोसेस जो उसको गवर्न कर रहा है, कोई कभी जैसे आपने बोला शैतान बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है, कभी पशु हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। सो दैट डजंट मैटर कि माँ बाप कौन है तो इंडिविजुअल पर्सन। वेरी गुड। उसकी पर्सनालिटी अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करेगा तो इट कैन बी एनीबॉडी। बेशक माँ बाप सेम हो, बहन भाई, मतलब बड़ा वो अपना आप डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है। उसके दिमाग में, जैसे आपने बोला पशु बैठा हुआ, किसके दिमाग में, दूसरे बहन भाई में कुछ और अच्छी चीज़ बैठी हुई है, क्रिएटर बैठी हुई है, कुछ और अच्छी चीज़ बैठी हुई है, किसके दूसरे में कुछ और बैठा हुआ है। सो दे ऑल द सेम क्रिएटर, माँ बाप सेम है, लेकिन आपके तीनों की सोच डिफरेंट है, यू नो। हाँ, अगर वो सारे बच्चों की, चेंज। हाँ, सारे बहन भाइयों की सोच डिफरेंट है, पर अगर वो अंदर से स्पिरिचुअल मम्मी पापा सेम बना लेंगे तो हाँ, सबका थॉट प्रोसेस और सेम हो बिहेवियर। जाएगा। राइट। बात तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर से चल रही है ना। बट बात तो बिल्कुल ठीक है। 90% मैंने देखा है कि सारे बहन भाई सेम नहीं होते, थिंकिंग प्रोसेस सबकी डिफरेंट होती है। हाँ बिकॉज जी। वंस देखे उनकी पार्टनर डिफरेंट है। देखो, एक आया है बहन भाई में से, एक की शादी होगी, पार्टनर आ गया तो उसका भी तो इन्फ्लुएंस होता है, हाँ, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। दूसरी बहन आई, उसका हस्बैंड आ गया, उसके भी डिफरेंट हो गया, उसके बच्चे हो गए, तो उसकी अपनी फैमिली शुरू होगी, भाई भाई की अपनी होगी, क्रिएट क्रिएट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डिफरेंट हुई। ऑल्दो वो तीनों सेम माँ बाप से पैदा हुए हैं, राइट, बट हाँ वंस जी, दे गेट मैरिड उनका सिस्टम उनका थोड़ा चेंज हो जाता है। बिकॉज उनके दो, राइट, उनकी अपनी फैमिली हो गई है, यूनिट बन राइट, गया, उनके बच्चे राइट। हो गए, यू नो। तो दिस इज द वे द वर्ल्ड इज गोइंग, ऐसे तो सारी दुनिया चल रही है। और इसके तो इन्फिनिट एग्जांपल्स बन जाएंगे ना, क्योंकि इन्फिनिट पीपल है, तो बिलियंस ऑफ पीपल है, इन्फिनिट एग्जांपल बन जाएंगे। पर स्पिरिचुअलिटी और धर्म सबका एक सोल्यूशन बता रहा है। हम तो उस रीइंकार्नेशन की बात कर रहे हैं ना। तो पहले ये सोचना होगा, मैं पपेट नहीं हूं, मैं पिछले जन्मों के कर्मों करके इस टाइम कुत्ते की एक्टिंग नहीं कर रहा, सांप नहीं बन गया, मैं अपने ख्यालों के कारण बन रहा हूं। दिस आई कैन चेंज, दिस इज द सोल्यूशन, एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी बिल्कुल। है ना। दैट्स ट्रू। बिल्कुल। इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट्स, देन वन कैन मूव। ये तो है। Okay, anybody has any other question? Because mother and father, they both have different personalities. Yeah, ये भी रमा जी ने लिखा है, because mother and father have both have different personalities. ठीक है। Explained. Anjana जी कह रही हैं beautiful topic and an excellent way to recreate yourself. थैंक यू। Excellent presentation, thanks much. Satsang, Simran and Seva. Yeah, Aparna भी आई हुई है, she's from London. And सतीश अरोड़ा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एवरीवन, सेम टू यू। वेरी सिंपली एक्सप्लेन, आपने बहुत अच्छी तरह सबको एक्सप्लेन किया है। ये भी तो बड़ी, देखो कितने अच्छे एग्जांपल दिए हैं वीर जी ने। आई मीन मेड इट सो सिंपल थॉट प्रोसेस। अगर ऐसे जाएं तो हमारा, यू नो, वी देन वी सी आवरसेल्फ इन दैट फॉर्म कि हाँ जी, उस दिन मैंने शायद पनी कुत्ते ऐसे बिहेव किया था, अब उस दिन मैंने अपने आप को सोचा हो तो मैंने ऐसे किया था बिहेव। सो अपने आप को चेंज एनी टाइम यू कैन डू इट। इट्स नॉट के खत्म हो गया, यू कैन डू एनी, चेंज योरसेल्फ एनी टाइम, यू नो, राइट। और ये जो वीना जी, ये जो हमने 12 के 15 साल पहले, मेरे जो बायोलॉजिकल मदर हैं
मदर आज्ञा कौर जी थे, तो वो उस टाइम लाइव थे और वो इंडिया आए थे। हमने सेमिनार किया था माँ, ये 5 घंटे का सेमिनार डिटेल में बड़े सारे एवेन्यूज के साथ यूट्यूब पे है माँ। वाह वाह, देखेंगे। अभी शैली जी कह रही हैं बड़ा अच्छा आपने, आई थिंक देयर इज, वो कहती है आई थिंक देयर इज नो पिछला जन्म और अगला जन्म, जो है एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट जन्म। हाँ जी, मेरे को किसी ने पूछा था कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे या पिछले जन्म में क्या थे, वो कहाँ से पता लगेगा। मैंने कहा कोई अगर ज्योतिषी आपको बता दे कि तुम पिछले जन्म में कुत्ता थे और अगले जन्म में हाथी बन जाओगे, तो अब क्या करना है? अल्टीमेटली आप भी आए। आप अल्टीमेटली देखो अपने पे डिपेंड करता है ना, या अगले जन्म में नोबडी, किसको क्या पता क्या होने वाला है। तो राइट भगवान को क्यों ब्लेम करते हो? वो ही इज नॉट द वन हु इज डूइंग ऑल दिस टू यू, यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, राइट। और राइट? बीना जी एक मेरे को वो पोएम, अगर ठीक वर्डिंग नहीं याद आएगी तो राइम भी नहीं होगा, तो आई एम सॉरी। उसका मीनिंग था कि इन उंगलियों को धागे बांधकर कठपुतलियां नचाने की आदत थी। कठपुतलियों को नचाते नचाते कठपुतलियों ने आपस में मीटिंग की कि ये उंगलियां हमें नचाती रहती हैं, तो सारी कठपुतलियों ने मिलके सारे धागे काट दिए और सब कठपुतलियां भाग गई। पर उंगलियों को नचाने की आदत थी, उंगलियां ऐसी चलती रही। तो ये भगवान नहीं नचाता, ये हम अंदर से दूसरों को डोमिनेट करके ऐसे नचाने की कोशिश करते हैं कि मेरी ताल पे नाचो। पति बोलता है पत्नी मेरी ताल पे नाचे, बच्चे मेरी ताल पे नाचे, बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने कामों पे चले जाते हैं, वो अपनी लाइफ जीने लगते हैं, वो बोलते हैं दिस इज मेरी लाइफ, माई जिंदगी। तो ये उंगलियां नचाने का जो डोमिनेट करने का ख्याल करती है ना, उसको जिसके अंदर राजमांस और नर्क पाती हो स्वान, वो यल करने वाले नर्क में बन जाता है डॉग। उफ, दैट्स द थिंग, ये ना यही तो है। अभी वो लिख रहे हैं कि सैमिना के सब पूछ रहे हैं और कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, रंजना जी कह रही हैं। एंड कोई और कह रहा है ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। अभी आपने सब्जेक्ट टच किया है कि ये जो अभी हमारी ज़िंदगी है, पिछले जन्म से कोई ताल्लुकात है कि नहीं? नहीं है नो, ना? नॉट एट ऑल। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि हमारा कोई नहीं है। दिस वी कम हियर, वी मेक आवर ओन थॉट प्रोसेस, कैसे सोचते हो, कैसे बनते हो, रोज जैसे रोज कोई और पर्सनैलिटी हो जाती है। यस, कभी जैसे आपने बोला डोंकी बन गया, कोई दिन में ये हो गया, लेकिन क्रिएटर भी बन सकता है, माँ भी बन सकती है, बन सकते वाह हैं, वाह राइट? वाह, यस। Why not take that route than to take the पशु वाला route? वो वाला को नहीं बनो। नीरज यू आर सो शार्प, आप एकदम No, पकड़ लेते हो। मजा आ गया। मैं थोड़ा because I this is the way I think, मुझे ऐसे समझ आती है तो मैं फिर वही बोलती हूँ। पर आपने बिल्कुल you know इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है। I mean all our people are writing that they understood very well। and आपकी वेबसाइट पे भेजी है किसने? अभी मेरे ख्याल दविंदर सिंह ने भेजी है। नहीं वही ना अपर्णा जी, हमारे वही जो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे आपने लिखा है वैसे नहीं है। इस जन्म में जो आप बिहेव करते हो वही हो, दैट्स व्हाट इट इज। सो ये नहीं कि नाउ व्हाट वी डू नाउ हैज नथिंग टू डू विद द नेक्स्ट लाइफ। अभी नेक्स्ट लाइफ का भी कुछ पता नहीं किसको क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो। कुछ है भी है कि नहीं, राइट, वी डोंट नो। तो जस्ट लिव फॉर द प्रेजेंट एंड डू द बेस्ट यू कैन। राइट, वी राइट अवर ओन डेस्टिनी। ये मैंने डोंट बिकम ए, जैसे डोंकी हो गया, ये हो गया, फलाना कुत्ता हो गया, फलाना भी क्रिएटर, माँ बनो। वाह, then you माँ बनोगे तो यू आर क्रिएटिंग समथिंग ब्यूटीफुल। एंड अपने आप को ठीक रखो, लाइन पे रखो, ठीक रखो, हेल्प एवरीबडी, दैट्स व्हाट यू कॉल रीइनकार्नेट योरसेल्फ। पहले मैं भी जब अपने सब्जेक्ट लिखा था, मैंने कहा लेट मी हियर दिस थिंग, व्हाट कैसे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, लेकिन इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, सब कह रहे हैं। एंड यू नो इज़ वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। तो इसका थोड़ा नेक्स्ट स्टेप भी होगा इस टॉपिक के बारे में, वो भी हम करेंगे किस दिन, डेफिनेटली। And like we said earlier, that some of you, I mean, like I said earlier, that some of you join a little bit late, and I would love it if you, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है 24/7 is available in दिल दिया गल्ला विद वीना लांबा। अब जाकर पहले भी इनके जो प्रोग्राम थे, हमारे और भी बहुत प्रोग्राम है, जाके सुन सकते हो, and you will learn something from there, each and every program. This is the third one
that VG has done with us. तो इनका अपना भी लिविंग ट्रेजर होता है, उनका भी ऑर्गेनाइजेशन है, उधर भी बहुत कुछ करते हैं ये. इस बेस्ड इन इंडिया. इट्स द वेबसाइट कॉल www.thelivingtreasure.org. सो वहाँ जाके आप सब कुछ देख सकते हो. and he's doing such wonderful work over there, helping the people and helping the poor, helping the underprivileged, and he's doing a lot. But right now he's residing in Westchester, and I'm lucky for that because then he can come and join me anytime. But कहते हैं इंडिया में भी मैं कर लूँगा. If I go to India, I'll work it out somewhere if I go there too. So that's very nice of him. But because he does his programs every Friday, so I'm thinking of changing the day when he comes so that we don't have to interfere. जो उनका 1996 से प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते हम. बट इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम जो अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे या इसको ही और थोड़ा डिटेल में बताएंगे. वो भी तो हमको सुनना चाहिए. बट आई वांट टू थैंक एवरीबडी हैज़ एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज डू राइट इट हियर. या डॉली जी, वी आर, इफ यू लुक गो टू माई पेज दिल दियां गल्लां विद वीला लांबा, दिस प्रोग्राम इज शेयर्ड ओवर देयर. आप उसको लेके फॉरवर्ड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ. यू कैन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स or tell them to join our program as well. Veena ji, I'm thankful to my sister Jeet Penji and Ranjana Penji. I know Ranjana ji यहाँ पर आई हुई है. ये दोनों रोज बात करती हैं और मेरे को इन्होंने टॉपिक पिछली बार भी दिया था, आज भी दिया. अच्छा, आज भी इन्होंने दिया है. वेरी नाइस. तो नेक्स्ट वाला भी बताएंगे आपको. तो दिस इज वेरी गुड टॉपिक. उनको मेरी तरफ से थैंक यू कर दो. ओके, मैंने रंजना जी को कहा था, कहते मुझे खबर आ गई है कि आज प्रोग्राम है आपका, क्योंकि उन्होंने आपके सिस्टर ने उनको बता दिया. तो मैं मैं भी बता रही हूँ आपको ज़रूर आना. तो शी इज़ हियर, शी इज़ आस्किंग क्वेश्चन एंड शी इज़ एंजॉयिंग. या 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मैं इंडिया सेमिनार करने जाता हूँ. जो 26 जनवरी 2020 जब कोविड शुरू हुआ था तब हमने सेमिनार किया था, वी राइट अवर ओन डेस्टिनी. वो यूट्यूब पे है. लेकिन अब जो 15 अगस्त आ रही है उसको मैं इंडिया जाके करूँगा, क्रिएट यूर ओन यूनिवर्स. ओह, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू. तो आप 15 तारीख को मतलब 15 अगस्त को जा रहे हो. यू विल नॉट बी हियर. Yeah, but I will, whenever you will call me, I will come to your platform. But that week, उस हफ्ते मैं भी यहाँ पर नहीं होंगी. कोई बात. I'm going away for 1 week. I'm going to come back on the 21st. तो आप कब वापस आ रहे हो? But anyway, we'll be in touch. Right. उसके बाद मैं 2 अक्टूबर का सेमिनार करके ही एक ही बार वापस आऊंगा. मैं 2 महीने आओगे. हाँ, तो वहाँ से करेंगे फिर हम. वहाँ से विल बी इन टच फ्रॉम देयर. एंड ओके, देन आई विल बी नेक्स्ट टाइम फिर इंडिया से ही देखते हैं, हम बात करेंगे. लेट्स टॉक इन बिटवीन. थैंक यू सो मच. आप अपनी ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस आपके साथ कई सालों से कर रहे हैं, उनसे भी टॉपिक ले सकते हैं. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट. यस, ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. सो प्लीज एवरीबॉडी हु इज हियर, ऑल माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी इज माय फ्रेंड हियर एक्चुअली. तो आप शेयर कर सकते हो आपकी थॉट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ टॉपिक वीरजी ला सकते हैं नेक्स्ट टाइम. प्लीज डू गिव अस एन आइडिया एंड देन वीरजी विल डेफिनेटली डू इट. आई विल टेल हिम. और ये आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, उसमें पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे और हम भी बता देंगे इनको. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. एंड आपको थैंक यू जी आने के लिए. एंड आपके जो हेल्प कर रहे हैं दरविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड ऑल everyone who's joined us, do keep on joining, please keep on coming, do keep on asking questions. And we have this program actually Friday ko, to inke liye change karenge hum. We'll change the day because he has his own program. But I want to thank everybody. वीर जी जाने से पहले कुछ कह के जाओ सबनो. बस जी, हम इंसानियत, ह्यूमैनिज्म का प्रोग्राम करते हैं वर्ल्ड वाइड. सो इट इज रिगार्डलेस एनी बाउंड्रीज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कंट्री और रिलीजन. हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि अपने आप को हम कैसे नया बना सकते हैं. बस यही हमारे सारे प्रोग्राम होते हैं और यही हमारी यूट्यूब है, द लिविंग ट्रेजर. लिविंग ट्रेजर, यस. तो आप प्लीज जाइए लिविंग, उधर जाके देखें उनके क्या क्या. एंड ऑल्सो गो टू यूट्यूब एंड सी द उनके कितने प्रोग्राम भी हैं. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में ही बुक्स, पंजाबी में है सब कुछ. 47 बुक्स. सब वेरी वेरी गुड. So thank you so much everyone for joining. I want to say have a wonderful day. Rest of the day in New York में, India में थोड़ा it's in the evening now, but over here is still just the day just started, you can say. It's almost 11:30. Thank you so much again. Once again, I'll see you back here. नमस्कार, खुदा हाफिज़ दीदी. सबको नमस्ते मेरी तरफ से भी. एंड मंडे को ज़रूर आना, हमारे साथ 2 प्रोग्राम हैं. 10:30
नरिंदर जी के साथ, और रात को हमारे कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है एट 8:30 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम. Thank you so much. Have a wonderful weekend. Be safe. Okay, Thank you. be safe. Thank you. Mhm.